Hello, welcome back to this physics lectures. Today we are going to learn itself about energy. So before starting to this energy student, let us to go through these questions. So that will help you to remind the concept of energy. First is that why do we eat food? Okay, so we are eating food. So in the morning, daytime, evening time, we are going for the junk foods, uh, that kurkure, namkeen. So different types of the things throughout the day we are taking. Why we are eating all these things? And second thing over there, that why we are taking our scooty, bike or car to the petrol pump. Okay, so we have normally observed that whenever we are going for a long run, so before going for this long run, we are taking our scooty or bike to the petrol pump. Why we are taking them there? Now the next one, which is in our daily experienced life, that why devices do not work when there is no electricity. As we have observed that when there is the electricity cut, so our AC, that of our TV, washing machine, they are not going to run. Okay, so why it happens? And the next is there that why there is need to charge mobile again and again. Okay, so we have observed it. Nowadays we are using our mobile, and there is the need to charge it after 3 to 4 hours, depends on our using. Okay, so thus we are having in all these things, student, one thing is common, that we are going to use fuel. Okay, what is over there common? We are using fuel. Fuel means anything which is going to burn and which produces this heat or power. Okay, for example, in a human, because this fuel is not same everywhere. So in a human, we are taking this food as a fuel, while in this scooty, bike or car, we are using petrol or diesel as a fuel, while in these machines such as our TV, washing machine, mobile, we are giving them fuel in the form of electricity. And next one over there, as we have said, it is regarding to mobile, it is also going to use electricity. Okay, now why they are using this fuel? Okay, so we must remember this one, that whenever fuel we are using over there, so this fuel gives energy. What it does? Energy. You are known with one thing, that whenever we are taking our food, so thereafter we can do any heavy work. Okay, when the car and scooty and they are filled with the petrol or diesel, so thereafter you can take them for a long run. Okay, and similarly if you are charging your mobile, so thereafter you can use it for your work. Okay, so it means over there, whenever we have to do the work, then we have the uses of energy, we are going to consume energy. Okay, so the student, we are taking this energy from our different sources. Okay, so over here energy is what? So we are looking at energy. So the common things which we have taken, that when we are eating food, so we are getting energy, means we are having the ability to do something. Okay, we can play the cricket, we can read the books, we can talk with the other one, we can have that muscular work. Okay, so all these work we can do when we are having energy. Okay, otherwise you have observed one thing, that when we are hospitalized, so glucose is given to us, because if we are not having sufficient energy, so this glucose is injected to our body. Okay, so similarly is with the everything. So everything in the sense mean to say that over there with the scooty bikes, they are getting fuel such as petrol and diesel, thus they are working. So it is we can say that it is capacity of a body, capacity of a body to do work. Okay, so that's we are going to call it is as energy. Now one thing you will observe, this body could be living or non-living. For example, as we are the human being, we are the living body, so we need energy as well. And similarly over there, our car, vehicles, what are these are non-living. Okay, so therefore we can say this one, that animistic and inanimistic, one word that we can use over there, that
all those body which is living or non-living. Okay, so this we can also go to state in another way. तो एनर्जी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, capacity to do work, that it is said to be energy. Okay, so now over there student, energy how we can measure that one. ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी है उसके लिए यूनिट हमारे पास अब दो टाइप ऑफ यूनिट दैट वी आर हैविंग, टू टाइप. वन इट इज सेड टू बी आवर एसआई यूनिट एंड सेकेंड इट इज सेड टू बी अवर सीजीएस यूनिट. ठीक है, एक बड़े यूनिट होते हैं, दूसरे छोटे यूनिट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो एसआई यूनिट हैं दैट आर सेड टू बी जूल. ठीक है, तो वर्क डन के भी जूल ही थे, तो हमारे पास एनर्जी के भी क्या है दैट इट इज जूल. ठीक है, सो ओवर हेयर जूल, जूल को हम क्या करते हैं कैपिटल जे से लिखते हैं. सो दिस इज वी आर हैविंग एसआई यूनिट. और जब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होती है, अर्ग होती है, छोटी यूनिट होती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अर्ग, सो ई आर जे से उसको हम शो कर देते हैं, ई आर जी से. ठीक है, सो दस वी आर गेटिंग ओवर हेयर कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है हम क्या यूज़ कर सकते हैं. बट ओवर देयर स्टूडेंट वी शुड टू रिमेंबर कि हमारे पास डिफरेंट फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसके लिए डिफरेंट यूनिट का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब डिफरेंट फील्ड इन द सेंस कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर बात की जाए हमारे पास जो यूनिट है इन द फील्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कमर्शियल जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंजप्शन. ठीक है, तो एवरी मंथ वी आर गिविंग आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एवरी मंथ और आफ्टर एवरी 2 मंथ वी आर गिविंग. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास बात आती है कि ये जो कमर्शियल यूनिट है उस एनर्जी कंजप्शन की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, इसको कमर्शियल यूनिट बोला जा रहा है. ठीक है, सो दैट इट इज़ यूज ओवर हेयर किलो वाट आवर. ये यूनिट हमारे पास यूज़ की जाती है, दैट्स दिस इज़ अ यूनिट फॉर एनर्जी कंजप्शन. ठीक है, अब बात ये है कि हमारे पास जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा ही सेम यूनिट से मेजर होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी को हम कह रहे हैं किलोवाट आवर, और इससे पहले बोला था कि एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं. सो स्टूडेंट, ये जो किलोवाट आवर है इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद दिस दैट जूल. ठीक है, तो जूल के साथ ये ऑलरेडी रिलेटेड है. जैसे हाउ इट इज़ रिलेटेड, सो लेट अस टू कन्वर्ट. किलो के को हटाऊं तो कितना लगेगा, 1000 लगेगा. ठीक है, वाट किस ग्रुप को बोला गया था, जूल पर सेकंड जो ग्रुप था उसको वाट बोला गया था. ठीक है, इनटू जो आवर है, आवर को अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि सेकंड्स में बदलूं तो हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 आवर, इट इज़ 3600 सेकंड्स. ये हमारे पास होते हैं. तो सेकंड से सेकंड कट हो जाता है इफ़ यू विल काउंट द 0 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा 36 इंटू 10 की पावर 5. इट इज़ इन जूल, ओनली जूल विल लेफ्ट ओवर है. ठीक है, तो इसलिए इसको और शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर व्हाट आई डिड ओवर हेयर, आई वांट टू मेक द डेसिमल आफ्टर 6 दैट ऑफ 3. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके यहाँ पर डेसिमल बना लिया. और इसलिए इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जब भी आपको डेसिमल लगाना है, जैसे यहाँ पर एक डिजिट पहले डेसिमल लगाना था, ठीक है, तो उतनी ही पावर आपको इंक्रीज़ करनी है. तो यहाँ पर एक डिजिट पहले की बात है तो 5 + 1, अगर 2 डिजिट पहले लगाना होता तो 10 की पावर 5 + 2 यानी कि 7 हो जाता. तो इसलिए एक डिजिट पहले लगा रहा हूँ, इसलिए ये मेरे पास किलो वाट आवर. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दैट एनर्जी कंजप्शन यूनिट. ठीक है, तो एनर्जी को आप इस यूनिट में भी मेजर करते हो, लेकिन ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. स्पेशल केस इज दैट इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन आप इस फार्मूले से निकालते हो, इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, हमारे पास एक और भी मतलब कि यूनिट है इस एनर्जी की यूज़ की जाती है. तो ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जा रहा हूँ, अब न्यूक्लियर फिजिक्स में जा रहा हूँ.
ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब कि जिसमें एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी होती है, ठीक है, उस फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट रिमेंबर ओवर देयर, हमारे पास क्या होता है, ये एटम है, एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शो करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एनर्जी मेजर्ड, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कैसे एनर्जी मेजर की जाती है, एनर्जी मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किस में मेजर कर दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या करना है, स्मॉल ई यूज़ करना है, और वोल्ट के लिए आपने कैपिटल वी लिखना है, तो ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर इसको जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर याद रखना, मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, ठीक है। तो ये हमारे पास कुलम हो जाएगा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जो वोल्ट है वो होती है जूल पर कुलम, वोल्ट इस ग्रुप ऑफ यूनिट को कहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ कैंसिल हुई, तो जिससे मेरे पास जो फाइनली कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, सो इट इज़ ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप एनर्जी को मेजर करते हो, तो इसलिए इसको जूल में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ओवर हेयर स्टूडेंट, अगर डिफाइन करने की बात आती है, हाउ वी विल डिफाइन दिस वन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया दैट इट इज एनर्जी गेन बाई इलेक्ट्रॉन when accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उस वक्त जो एनर्जी गेन होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो दस वी कम टू नो कि हमारे पास जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं, उसको आप किलोवाट आवर में भी मेजर कर सकते हो, और अदरवाइज स्टैंडर्ड यूनिट जो उसके जूल, और जो छोटे यूनिट हैं वो अर्ग होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर बिगर यूनिट्स भी होते हैं इसके, बिगर बिगर मतलब कि बड़े जो यूनिट हैं हमारे पास, बिगर यूनिट, तो बिगर जो एस आई से भी और सी जी एस से दोनों से बड़े होने वाले हैं। जैसे हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास मेगा को हम क्या कहते हैं, 10⁻6 से लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस चीज़ को लिखा, अभी लास्ट सेट में हमने लिखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होती है। तो इसलिए हमारे पास पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर, ये प्लस का 6 माइनस का 19, तो माइनस का 13 जूल। सो इट इज़ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, it is said to be mega, M for mega, electron, E for electron, and that V for volt, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है यूनिट वो यूज़ की जा सकती हैं, ओके। सो दस ओवर हेयर दैट वी कम टू नो अबाउट हाउ डू वी मेजर दिस एनर्जी। तो एनर्जी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट और डिफरेंट जो अदर यूनिट भी हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक ओवर हेयर दैट इट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे पास क्या एनर्जी एक ही टाइप की होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आ गया दैट इट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी कौन कौन से टाइप की होती है, सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम बात करें डिफरेंट, यानी कि हमारे पास एनर्जी क्या था, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, तो हर एक चीज़
जो थी उसका एनर्जी का तरीका ही कुछ अलग था। जैसे हम बात कर रहे थे फूड यूज़ कर रहे हैं, कोई पेट्रोल केमिकल यूज़ कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है, कोई लाइट का यूज़ करेगा। तो इसलिए हमारे पास एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स की हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी फॉर्म है, फर्स्टली दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर है। जैसे फर्स्ट वन इट इज़ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एनर्जी मतलब कि क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या होगी, विच मेक्स अस टू सी इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब जैसे डे टाइम में या फिर अभी जो जितना भी मैं इस पेज के ऊपर लिख रहा हूँ वो सारा का सारा आपको क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लाइट एनर्जी। ठीक है, इस पेज के ऊपर लाइट पड़ रही है, वो लाइट जो है इस चीज़ को विजिबल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, विच मेक्स थिंग्स विजिबल, which makes things visible in our surrounding। which makes things visible। तो हमारे पास ये क्या करेगा, चीज़ों को मतलब कि हमें हेल्प करेगा देखने में। ठीक है, तो मेन सोर्स क्या होता है हमारे पास, अगर बात करें ये जो लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मेन सोर्स है इसका दैट इट इज़ सन। ये हमारे पास सन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट होगा दैट इट इज़ नेक्स्ट इज देयर दैट रिलेटेड टू दिस केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, तो केमिकल एनर्जी हमारे पास स्टूडेंट जैसे जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से मिलती है। ठीक है, सॉरी, इट इज़ नॉट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फ्यूल बट इट इज़ एनर्जी इन द फ्यूल। तो हमारे पास जो फ्यूल के अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी इन फ्यूल। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, दैट दिस इज सेट टू बी केमिकल एनर्जीज। तो कौन कौन से हमारे पास फ्यूल आ गए, जैसे सच एज कौन से हैं, कोल हमारे पास हो गया, या फिर ये पेट्रोल हो गया। ठीक है, या फिर डीजल हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गए, ये फ्यूल हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ये एनर्जी कौन सी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल है, तो सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इट इज़ थर्ड वन। तो थर्ड हमारे पास क्या हो गया, दैट इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट हम जानते ही हैं, when the sun sets, so thereafter the things that we can see in our surrounding, it is because of this electric energy। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाती है, ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से विजिबल हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दैट विच मेक्स, ये क्या है, एनर्जी विच मेक्स मशीनरी टू वर्क। तो मेजरली हमारे पास मशीनरी जो है वो क्या करते हैं, उनसे काम करवाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर हम बात बोलें, जो फ़ैन है, फ़ैन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। जो टीवी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कंबाइनर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास ये अलग अलग हैं जो मतलब कि डिवाइसेस हैं जिनको चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम छोटे से सर्किट की बात करें जो प्रोजेक्ट में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो सेल प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इनके सोर्सेज की भी बात की जा सकती है। तो नेक्स्ट ओवर देयर हमारे पास दैट इट इज टू बी हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी मतलब कि क्या हो गया, सो एनर्जी गिवन बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्यूल है जब ये बर्न करता है तो उस वक्त ये कौन सी एनर्जी देता है, हीट एनर्जी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम गैस जलाते हैं, सच एज जब हम गैस जलाते हैं तो उस वक्त वो क्या करेगा, हीट एनर्जी देगा। जब ये पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उस वक्त क्या करेगा, हीट एनर्जी देगा। जब हम वुड
को वर्न करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो फ्यूल है उसको वर्न करने से जो एनर्जी मिलती है उसको हीट एनर्जी बोला गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ओवर देयर द डिफरेंट फॉर्म्स विच वी आर टेकिंग हेयर, it is that of energy number 5 which we are going to discuss now, fifth energy। and what is this one? It is sound energy। ठीक है, तो साउंड एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, सो विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, ये एनर्जी क्या करती है, कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इस एनर्जी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये साउंड एनर्जी हो जाती है। सो नेक्स्ट इज देयर दिस वी आर टेकिंग इट इज ओवर हेयर विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी हमारे पास जो वन थिंग वी हैव ऑब्जर्व, जो मूविंग विंड एयर होती है, मूविंग एयर, ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू अपरूट द प्लांट ट्रीज एंड टू रोटेट द विंग्स दैट फैन ब्लेड ऑफ द विंड मिल। ठीक है, तो चलती हुई हवा के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी इन मूविंग एयर, इन मूविंग एयर, तो चलती हुई हवा के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या बोला गया, विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फॉर्म विच वी आर टेकिंग इट इज ओवर हेयर दैट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन किस में, ये स्टोर्ड इन सन। सो इन द डे टाइम वी आर गेटिंग द सन एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए सन की एनर्जी को क्या नाम दिया गया, सोलर एनर्जी नाम दिया गया। नेक्स्ट ओवर देयर दैट वी कैन से हेयर इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट हम ME भी लिखते हैं इसको, या फिर इसको मतलब कि हम कैपिटल E से भी लिख लेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हम दो तरीके से लिख लेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में ये क्या हो जाती है, बॉडी में आती है दो वजह से। ठीक है, स्टोर्ड इन बॉडी, स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू, बॉडी ड्यू टू, तो ये बॉडी में दो वजह से स्टोर हो जाती है। वन इट इज़ सेड टू बी, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, इट इज़ स्टोर्ड इन बॉडी इन टू फॉर्म। तो दो फॉर्म में ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। तो कौन सी दो फॉर्म में, सो वन वी आर सेइंग इट इज़ ड्यू टू इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन और शेप। ठीक है, इसकी पोजीशन या शेप की वजह से ये इसमें स्टोर रहती है। और दूसरा हमारे पास दैट इट इज़ ड्यू टू ऑफ इट्स मोशन, तो बॉडी के मोशन की वजह से, ड्यू टू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो इसलिए बॉडी के अंदर ये एनर्जी दो वजह से रहती है। ठीक है, जो उसकी पोजीशन की वजह से भी हो सकती है या फिर इसके मोशन की वजह से भी हो सकती है। तो इन दोनों एनर्जी को कलेक्टिवली हम क्या नाम दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अभी इसमें हमें इस बात को समझना है, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या बोला हमने, इट्स पोजीशन और शेप। ठीक है, तो उसकी पोजीशन और शेप की वजह से जो एनर्जी रहती है, ठीक है, सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को जो बॉडी के अंदर होगी इसको हम बोलेंगे इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जो हमारे पास ड्यू टू ऑफ इट्स मोशन है, ठीक है, जब कोई चीज़ चलती है, जैसे मूविंग एयर है, मूविंग बॉल है, मूविंग हैंड है। ठीक है, जब किसी को पंच करना हो ना तो हाथ को घुमाना पड़ता है ना, मोशन में लाना पड़ता है, तभी तो लगता है पंच। तो इसलिए मतलब कि हमारे पास क्या हुआ, मोशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो मूविंग बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो ओवर हेयर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जनरली व्हाट वी सेड दैट मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो टाइप में आ गई। एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी हमारे पास है दैट इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। दीज आर ओनली द टू फॉर्म्स ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर whenever we have to write this energy comes in the body due to a potential energy and that of
काइनेटिक एनर्जी। तो इन दो चीज़ों की वजह से ये जो है हमारे पास एनर्जी बनती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इट में हैपन, अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर ना हो, काइनेटिक एनर्जी ना हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, दैट इट इज़ के। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से लिखने जा रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी को जो है मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसको लिख रहा हूँ मैं यू से। हेयर इट इज़ यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर इफ़ देर इज़ नो मोशन इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो लेनी होती है, नो मोशन। ठीक है, इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, तो दैट टाइम मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो इसलिए क्या होगा, u प्लस जीरो, यानी कि ओनली u विल कम ओवर देयर, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज करो जो सेकंड केस में अगर हम बात करें, अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, बाकी इसके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो के अंदर की जाएगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई, सो दैट इम्प्लाइज मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से बन रही है, ओनली काइनेटिक की वजह से बन रही है। ठीक है, तो इसलिए रिमेंबर ओवर देयर कि हमारे पास ऐसा नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी या तो पोटेंशियल की वजह से बॉडी के अंदर होती है, नहीं तो काइनेटिक की वजह से। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बॉडी के अंदर दोनों ही एनर्जी हो, मतलब कि वो मोशन में भी हो, ठीक है, और उसकी पोजीशन या उसकी जो शेप है उसकी वजह से भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो। ठीक है, तो उस वक्त ये दोनों ही एनर्जी मिल करके मैकेनिकल एनर्जी बना रही होंगी। ओके, सो दिस वी आर हैविंग, तो इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू लर्न ऑफ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, that it is related to kinetic energy and potential energy. So keep on watching. So thank you